Hi everyone. I hope you are all able to see me, hear me properly. आपको मेरा आवाज आ रहा होगा. We'll be starting the session in the next 3 minutes. Just waiting for few more participants to join in. अगले 2 से 3 मिनट में हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करेंगे. आप लोग इस लिंक को अपने फ्रेंड्स को भेज सकते हो. Those who are interested, those who feel that there is something which they can attend. I'm going to talk about the benefits of GATE exam. We are going to discuss something great about the GATE examination. ठीक है, क्या है उसके फायदे, how it works, कैसे क्रैक किया जाए एग्जाम को. ठीक है, हम सारी बातें करेंगे. ठीक है, so just hold on for another 2-3 minutes. We'll be starting this session very soon. I'm allowing few more minutes for people to join in. It's 7:59 according to my watch. So you can pass on the link to all your friends who are interested. बहुत ही काम का सेशन होगा. It will be a 30-35 minute session, not more than that. But make sure that आप बने रहें और ये लिंक आप जितने भी टेलीग्राम ग्रुप्स आपके फ्रेंड्स ग्रुप को शेयर करना चाहें, you can share this. Okay, so I think we are all ready to hear out from me. मैं आप सभी लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज अपने नाम को रीनेम कर लें. I can see many names with Redmi, your roll number, your dummy name. My request HP, KP. My request is all of you, please Redmi Note 7 Pro. Please rename yourself with your correct name so that you know I can address you. और बहुत ही एक्साइटिंग सेशन अपन करेंगे यार. आज बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ गेट एग्जाम, क्यों करना चाहिए गेट एग्जाम. ठीक है, सारी बातें बताऊंगा मैं आप लोगों को. बट पहले मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी बच्चे लोग प्लीज अपने आप को रीनेम कर लो फटाफट सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन. बहुत एक्साइटिंग सेशन होगा ये. आई कैन प्रॉमिस यू दैट आई विल टेक 30 मिनट्स ऑफ योर्स. 30 मिनट लूंगा आपसे, ज्यादा समय नहीं लूंगा. इट विल जस्ट 30 मिनट्स. बट मेक श्योर दैट यू हैव रीनेम योरसेल्फ विद योर करेक्ट नेम. अपने करेक्ट नेम को यहाँ पे रीनेम कर चुके होंगे आप लोग सभी. ठीक है, फटाफट कर लीजिए आप. क्विकली रीनेम योरसेल्फ. ओके, एंड कंफर्म कर दो चैट बॉक्स में जो लोग मेरी आवाज बिल्कुल से सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं. या गया श्री सत्या, जस्ट होल्ड ऑन अ मिनट, आई विल बी स्टार्टिंग. विवेक, सोहम, जेनित, पुष्पराज, मुनीब, मयंक,
Lakshman, everybody, can you just confirm whether my voice is audible? I'm perfectly visible. Okay, Zenith, thank you, Lakshman. Okay, Creed. Okay, ये EYFG, please अपना नाम rename कर लो यार. ठीक है, make sure that Sapna ma'am, I'm giving you the rights to become a co-host. SC, if you are there, I'm giving you the rights for the co-host. Please make sure that you are helping these students so that they can be a part of this particular session. Okay, great, Pushparaj, thank you. Neha, okay. Munib, okay. Bamban says, okay. Bamban Kumar, ठीक है. Video and audio is okay. Hardik says, Soham says, perfect, sir. Okay. Mumukshu says you are audible, sir. Aman says yes. Ravinder, fine. Okay, great. चलिए, great. चलिए start करते हैं. Perfect है. अशोक कह रहे हैं, आशीष कह रहे हैं. Okay, Mayank, perfect कह रहे हैं. ठीक है. साक्षी रजावत, you need to rename yourself. I'll just rename you. Sakshi, you have. Okay, just a minute. Okay, great. So I think most of you have changed your names. So please make sure that you are there with your correct name. So otherwise you will be removed from this session. So आप अपने correct name के साथ यहाँ रहें, ठीक है. And please जिन लोग को भी friends हैं जो Telegram groups में आप हो, WhatsApp ग्रुप्स में हो और वो लोग भी ये सेशन अटेंड करना चाहते हैं तो ये लिंक पास ऑन कर दीजिए सो दैट एवरीबडी कैन बी बेनिफिटेड आउट ऑफ इट. ठीक है, हम लोग इतने सेल्फिश नहीं होने चाहिए कि खाली हम ही अपना फायदा देखेंगे सर, हम दूसरे का भी फायदा देख सकते हैं. ठीक है, सबका फायदा, सबका साथ, सबका विकास. ठीक है, सो वी विल ट्राई टू एडमिनिस्टर दैट. ठीक है, चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं 30-35 मिनट लूंगा, आपके ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि इवनिंग टाइम, वो भी फ्राइडे इवनिंग, इंजीनियर का बहुत ही इंपॉर्टेंट समय होता है. ठीक है ना, सो मैं समझ सकता हूँ उस बात को. सो मैं बहुत ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा. मैंने प्रॉमिस किया है आपसे 30 से 35 मिनट्स आई विल बी टेकिंग. ठीक है, एंड इन दिस 30-35 मिनट्स आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू गिव यू ऑल द फंडामेंटल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर क्रैकिंग गेट एग्जाम. ठीक है, मैं बहुत सारा मोटिवेशन भी दूंगा, बहुत सारा चार्जअप भी दूंगा. मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप लोग सारे इंजीनियर्स हैं और जीवन में कुछ करना चाहते हैं. ठीक है, गेट करोगे कि नहीं करोगे आपको नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है, बट आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, शायद इसलिए आप यहाँ पे समय इन्वेस्ट करने आए हैं. ठीक है, so just to give you a briefing, my name is Rohan sir. I am basically an engineer like you. आप ही की तरह एक अभागा इंजीनियर हूँ. ठीक है, अच्छा, बाय द वे, जस्ट टू अपडेट अगेन, प्लीज जल्दी से अपने फ्रेंड्स जिनको बाकी हैं उनको कॉल कर दो, मैसेज कर दो, फोन कर दो. जो लोग यहाँ नहीं आए हैं और आने वाले थे उनको फटाफट बुला लो यार, बिकॉज सेशन 30 मिनट्स का ही होगा, बहुत लंबा सेशन नहीं है. तो प्लीज फटाफट उनको लिंक शेयर कर दो और उनको भी यहाँ पर बुला लो सो दैट एवरीबडी कैन बी बेनिफिटेड आउट ऑफ दिस. ठीक है, नेक्स्ट 2 मिनट्स में इफ दे कैन कम डाउन तो दैट विल बी ग्रेट एंड जस्ट क्विकली ट्राई टू टेल देम टू कम एंड जॉइन दिस सेशन. ठीक है, चलिए, सो मेरा नाम रोहन सर है. I'm basically an engineer by profession. ठीक है, did my master's course from IIM Calcutta. ठीक है, और पिछले 12 सालों से मैं आप ही के जैसे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, I've been guiding students for different exams like CAT, GRE, GATE, UPSC, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स के बच्चों को पढ़ाया है. ठीक है, और इन 12 सालों में लगभग 1 लाख से ज्यादा बच्चों को गाइड कर चुका हूँ. I've been taking the sessions in cities like Bangalore, Calcutta, Pune, Nagpur, Ahmedabad, Vadodara, Surat, Srinagar. I've taken sessions in Lucknow, I've taken sessions in Delhi, Jaipur, Bhopal. इतने सारे शहरों में बच्चों को पढ़ाया है, बच्चों सारों के साथ बात किया है. तो बहुत ही इतने सारे केस स्टडीज लेके बैठा हूँ. ठीक है, और जितने भी मैं आज बात करने वाला हूँ ना, ये मेरे सारे इतने 12 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे बात करूंगा. आई एम द फाउंडर एंड द डायरेक्टर ऑफ आइसगेट. ठीक है, ये कंपनी जो आपके सामने लोगो दिख रहा है जिस कंपनी का, उसका मैं फाउंडर हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं खुद पढ़ाता हूँ, है ना. आई डील विद एप्टीट्यूड. ठीक है, कल हमारा एक नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है जिसमें हम लोग एप्टीट्यूड की बात कर रहे हैं. सो अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन जिस भी मोड पे अटेंड करना है, यू कैन अटेंड माय क्लासेस आल्सो. यू कैन सी कि किस तरीके से हम चीजों को वर्कआउट करते हैं, किस तरह से हम चीजों को पढ़ाते हैं. तो अगर आपको वो भी करना है तो एंड में अपना नंबर दूंगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दूंगा एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेशन आल्सो. ठीक है, सो अभी के लिए जब आज का जो सेशन है वो हम बात करें बेनिफिट्स ऑफ गेट एग्जाम. ठीक है, गेट एग्जाम क्यों बच्चे लिखते हैं. ठीक है, देखो, जब मैं इंजीनियरिंग की स्टूडेंट्स की बात करता हूँ तो इंजीनियर के पास बहुत सारे ऑप्शन है. ठीक है, सर मैं जॉब ले सकता हूँ, सर मैं मास्टर्स कर सकता हूँ, मैं पिताजी का बिजनेस कर सकता हूँ. अब मास्टर्स में भी कई सारे ऑप्शंस पैदा हो जाते हैं. सर एक मास्टर्स होता है मैं एमटेक करूँ, आईआईटी में जाऊँ. ठीक है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के ऑप्शंस हैं. ठीक है, चाहे कोई भी ऑप्शन में जाओ, चाहे कोई भी ऑप्शन में जाओ, भाई गेट तो करना ही पड़ेगा. सर क्या बात कर रहे हो, हमने तो सुना है अमेरिका जाने के लिए जीआरई देना होता है. हाँ, देना होता है, बिल्कुल देना होता है.
तो सर फिर क्यों गेट देना है, मैं बताऊंगा आपको। अगले 20 मिनट 25 मिनट मेरे साथ बने रहना, मैं आपको बहुत जबरदस्त तरीके से बताऊंगा। मैं आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि 30-35 मिनट्स, बस 30 से 35 मिनट मुझे दे दीजिएगा, मैं 30 से 35 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। 30 से 35 मिनट्स आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू गिव यू ऑल द इन्फॉर्मेशन व्हिच इज रिक्वायर्ड। फिर भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह जाएगी तो लास्ट में अपना नंबर भी दूंगा, तो मेरा नंबर और ईमेल आईडी लिख लेना। आपको जो भी बात करनी है, डिस्कस करना है, मुझसे बात कर लेना। आई विल हेल्प यू इन व्हाटएवर बेस्ट वे आई कैन, ठीक है। बट मेक श्योर दैट इस सेशंस के पूरा पूरा भरपूर फायदा उठाना है। खाली 20 मिनट मेरे साथ बने रहना। जब मैं बोल रहा हूं तो प्लीज चैट में कोई भी सवाल मत पूछना, सो दैट मैं डिस्ट्रैक्ट ना हो जाऊं। और एंड में आपके जो सवाल होंगे, जितने सवाल होंगे, चैट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। व्हाटएवर क्वेश्चंस यू हैव एट द एंड ऑफ द सेशन, आई विल लव टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। बट एज ऑफ नाउ बीच में चैट में मत सवाल लेना, क्योंकि अदरवाइज आई गेट डिस्ट्रैक्ट एंड प्रोबेबली जो मैं कहना चाहता हूँ वो शायद मिस हो जाएगा। नोटबुक पेन रखना चाहते हो रखना। ये पीपीटी चाहिए आपको, जो मैं पीपीटी दिखाने वाला हूँ आपको, वो पीपीटी चाहिए तो एंड में मेरे से मांग लेना, ठीक है। मैं व्हाट्सअप कर देना मुझे, आई विल शेयर यू द पीपीटी आल्सो, सो डोंट वरी अबाउट दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट कि मुझे स्क्रीनशॉट लेने हैं, नहीं, जरूरत नहीं है। इसमें कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन है वो इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे कंपाइल कर दी है, ठीक है भाई। क्लियर है यहाँ तक सभी को? चलिए, पीपीटी मैं दे दूंगा लास्ट में, मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं नंबर दूंगा आपको, ठीक है। तो मैं लास्ट में, आप मेरे से पीपीटी मांग लेना, मैं पीपीटी भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, लास्ट में व्हाट्सअप ले लेना मुझसे, ठीक है। यू कैन टेक योर पीपीटी आल्सो, आई विल गिव यू द पीपीटी, डोंट वरी, ठीक है। इसमें कोई सीक्रेट चीज नहीं है, मैं अपना फोन नंबर भी दूंगा, ईमेल आईडी भी दूंगा, सब कुछ दूंगा। बट मेरे को बीच में डिस्ट्रैक्ट मत करना, चैट बॉक्स में कुछ मत लिखना, ताकि मैं डिस्ट्रैक्ट ना हो, ठीक है भाई। ठीक है, चलो स्टार्ट करें आज का सेशन, ठीक है। ओके, चलो मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग दे देता हूं आप लोगों को। एवरीबॉडी रेडी? कैन आई हैव अ क्विक यस और नो इन द चैट बॉक्स? है ना, मेरे को एंथुसियास्टिक क्राउड दिख रहा नहीं है यार। कैन आई हैव अ यस इन द चैट बॉक्स? एंथुसियास्टिक यस मिल सकता है क्या मेरे को? यस 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 यस। ओके 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 चिराग, ओके अनिकेत, ओके 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 स्वजल, ओके राहुल, नंदा, ओके ग्रेट 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 ग्रेट, कार्तिक, सक्षम, जेनित, आशीष, बंदी कुमार, ओके ग्रेट, पारुल, पुरेल, ओके, प्रवीण, शेख, ओके, अभय, ठीक है भाई, ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। आई होप एवरीबॉडी इज एबल टू सी दिस व्हाइट बोर्ड नाउ। ग्रेट, ओके, चलिए, ओके ओके, रेडी? आदित्य सेस ओ यस, ओ या, ये जो है भाई अपना नाम रीनेम कर लो। मैंने कहा था कि जो भी यहाँ पे फंकी नेम रखेगा, प्लीज मेक श्योर दैट इज एन इंपॉर्टेंट सेशन, तो डोंट कीप योर डमी नेम्स, ट्राई टू कीप योर एग्जैक्ट नेम्स आउट हियर, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, क्विकली फटाफट बात करने की कोशिश करते हैं। देखो, दो चार चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको सबसे पहली चीज बोल रहा हूँ, गेट तो करना ही पड़ेगा। सर क्या मजाक कर रहे हो आप? एक इंजीनियर की मैं अगर बात करूं, एक इंजीनियर की अगर मैं बात करूं, तो इंजीनियर के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है। मैं टिपिकल ऑप्शंस की बात कर रहा हूं, ठीक है, समझना बात को। सर मैं जॉब ले सकता हूं। अब जॉब भी दो तरह की हो सकती है सर, एक तो गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, या तो प्राइवेट जॉब हो सकती है, ठीक है। मेरी बात समझना, जो भी सवाल आ रहा है अभी मत पूछिएगा, लास्ट में पूछ लेना एक साथ, ठीक है। नोट करके रखना, मेरा एक गवर्नमेंट जॉब हो सकता है सर, प्राइवेट जॉब हो सकता है। दूसरा सर, मैं मास्टर्स कर सकता हूँ। मास्टर्स भी मैं कई तरीके की कर सकता हूँ सर, मैं इंडिया में कर सकता हूँ और मैं अब्रॉड कर सकता हूँ, है ना। अगर मुझे दोनों की बात करूं तो मैं सर एक एमबीए कर सकता हूं, दैट इज बिजनेस की तरफ जा सकता हूं, और एक एमटेक कर सकता हूं जो मैं आईआईटी आईएससी से कर सकता हूं, ठीक है। दैट आर द टू ऑप्शंस आई हैव, एंड द सेम टू ऑप्शंस आई कैन हैव वन अब्रॉड आल्सो। बाहर भी मैं एमएस कर सकता हूं या तो एमबीए कर सकता हूं, है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, तीसरा एक ऑप्शन मैंने कहा इंजीनियर के पास हो सकता है कि सर मैं पिताजी का बिजनेस करता हूँ और मैं उस बिजनेस को बहुत बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। दैट इज द थर्ड ऑप्शन व्हिच आई कैन लुक। सो मेरे पास ब्रॉडली स्पीकिंग ये ऑप्शंस है, ठीक है। उसके अलावा मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ सर, मैं यूपीएससी क्रैक कर सकता हूँ, आईईएस की एग्जाम दे सकता हूँ, आपने सुना होगा आईएएस आईएएस होता है, ठीक है। तो वो सब दे सकता हूँ, टिपिकली वो गवर्नमेंट एग्जाम्स में आ जाता है जॉब के लिए अल्टीमेटली, ठीक है। सो अदर बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, बट ब्रॉडली स्पीकिंग दीज आर द फंडामेंटल थिंग्स, ठीक है। अब मैं आपको कह रहा हूँ, आप इंजीनियर हो, आप कुछ भी करना चाहते हो, गेट तो करना ही पड़ेगा। सर क्यों? देखो यार, मेरे पास ना इतने सारे इंजीनियर्स आते हैं हर साल, है ना। मैं आइस गेट रन करता हूँ, फाउंडर ऑफ आइस गेट, और मैं पिछले 12 सालों से बच्चों को पढ़ाता हूँ, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो मैं इतने सारे बच्चे आते हैं हर साल, और बच्चे आके मुझे बोलते हैं कि सर हमें गेट करना है। तो मैं उसे बोलता हूँ कि बेटा आपको पीएसयू जॉब्स में जाना है, क्योंकि आपको पता होगा जितने भी पीएसयूज हैं, जैसे ओएनजीसी, आईओसीएल, एचपीसीएल, नाम सुने हैं ना, पेट्रोल भराते हो ना, इन सब में जॉब चाहिए तो आपको गेट करना पड़ता है। तो मैंने कहा बेटा आपको पीएसयू में जाना है? बोलता नहीं सर, वो मेरा मेन मकसद नहीं है। मैंने बोला अच्छा, तो आपको टॉप आईआईटी में जाना है? आपने सुना होगा आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, आपको पता है आईआईटी रुड़की, है ना, जो जो नॉर्थ में आता है। आज की तारीख में एवरेज पैकेज सिविल इंजीनियर के लिए, मैकेनिकल, केमिकल, जो भी आप ब्रांच में बिलोंग करते हो, एवरेज पैकेज इज समवेयर अराउंड 18 से 20 लाख रुपया।
और वंडरफुल कॉलेज यार। आईआईटी की फीस तो आप जानते हो नॉमिनल होती है, एमटेक की तो बहुत ही नॉमिनल फीस है। केवल 50,000 रुपए में आपका मास्टर्स कंप्लीट हो जाएगा और आपका एवरेज पैकेज 20 लाख के ऊपर हो सकता है। लेकिन अच्छी आईआईटी में जाना है, इसे हरे गहरे कॉलेज में नहीं जाना है। शायद आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो वहां भी एमटेक होता है, लेकिन मैं वहां से एमटेक करने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ टॉप आईआईटी की टॉप ब्रांच से। अगर आप वो करते हो तो आपका एवरेज पैकेज बहुत जबरदस्त हो सकता है। और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, हर साल हम आइस गेट में इतने सारे बच्चों को पढ़ाते हैं जो कि इन आईआईटी में पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ के पास आउट हो चुके हैं। उनसे भी आपको कनेक्ट होना है, मैं करा दूंगा। ठीक है, मैं एलुमनाई टॉक कराता हूँ, मैं बहुत सारे बच्चों को बुलाता हूँ। आप भी जब अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओगे तो आपको ही बुलाऊंगा। ठीक है, तो मैंने उस बच्चे से पूछा कि बेटा तेरे को गेट क्यों करना है, तेरे को आइस गेट क्यों ज्वाइन करना है, तेरे को पीएसयू जॉब चाहिए? बोलता नहीं सर वो मेरा मेन मकसद नहीं है। मैंने बोला अच्छा तेरे को आईआईटी में जाना है, टॉप आईआईटी में जाना है? तो बोलता सर वो भी मेरा मेन मकसद नहीं है। तो मैंने बोला अच्छा फिर तेरे को अब्रॉड जाना है? ठीक है, तो बोलता है नहीं सर वो भी मेरा मेन मकसद नहीं है, क्योंकि अब्रॉड में आपको पता होगा कि जर्मनी, ठीक है, न्यूजीलैंड, लेट्स से फॉर एग्जांपल सिंगापुर, इन यूनिवर्सिटी में इंडियन गेट स्कोर को वैल्यू दी जाती है। जर्मनी की टॉप यूनिवर्सिटी है एहन यूनिवर्सिटी, राइट, TU9 यूनिवर्सिटीज, बर्लिन यूनिवर्सिटीज, ये सब टॉप यूनिवर्सिटी है जर्मनी की। ऑटोमोबाइल में कोई इंटरेस्ट रखता है तो जर्मनी इज अ बिग हब फॉर दिस। तो उन कंट्रीज में इंडियन गेट स्कोर को वैल्यू दी जाती है, आपको स्कॉलरशिप्स मिलती हैं उसके अंदर। न्यूजीलैंड की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, NUS सिंगापुर, NTU सिंगापुर, दीज आर सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज जो आपके लिए टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज हो सकती है। तो उसने बोला कि सर वो भी मेरा मेन मकसद नहीं है। तो मैंने बोला यार फिर तेरे को क्यों गेट करना है? प्लीज अंडरस्टैंड, आपको पता होगा लगभग 8 लाख से ज्यादा बच्चे गेट के एग्जाम लिखते हैं और हिंदुस्तान में लगभग 15 लाख इंजीनियर हैं हर साल जो मैन्युफैक्चर होते हैं। तो 15 लाख में से कितने लाख गेट लिख देते हैं? 8 लाख। ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा जनता गेट लिखती है। क्यों? पागल हो गई है क्या? एक इंजीनियर पागल हुआ होगा, 2 इंजीनियर पागल होंगे, सारे थोड़ी पागल हो गए होंगे, है कि नहीं? समझना मेरी बात को, ये सब क्यों गेट लिखते हैं उसके पीछे मल्टीपल रीजन है। सर अगर मुझे MS करने यूएस जाना है, समझना, MS करने अगर यूएस जाना है, अमेरिका जाना है, ठीक है, मुझे IELTS देख के कनाडा जाना है, IELTS देख के कनाडा जाना है, ठीक है, कोई भी आपका अब्रॉड करने का पढ़ाई का इच्छा है, ठीक है, मास्टर्स कोर्स करना है, पढ़ने क्या जाओगे? टेक्निकल कोर्स। कॉलेज में क्या पढ़े हो वो तो मुझसे कुछ छुपा नहीं है भाई, मैं तो 12 साल से तुम्हारे जैसे इंजीनियर्स को देखता हूँ। हमारी हमारी पढ़ने की पद्धति एकदम रजनीकांत स्टाइल की होती है ना। एग्जाम से एक रात पहले हमारे अंदर रजनीकांत की आत्मा आती है, सारा सिलेबस चाटते हैं, अगले दिन उल्टी करके आ जाते हैं, पास हो जाते हैं। और हर सेमेस्टर के पहले दिन ये जरूर सोचते हैं कि यार पहले दिन से पढ़ाई करूंगा तभी कुछ होगा, लेकिन वो एंड मोमेंट पे जाके लड़ाई करनी पड़ती है। होता है कि नहीं? जिन लोगों को मेरी बात से एतबार हो रहा है, से यस इन द चैट बॉक्स। ठीक है, जो लोग मेरी बात से एतबार रखते हैं, से यस इन द चैट बॉक्स कि हम एकदम सब टिपिकल इंजीनियर हैं हम। ठीक है, उसमें कोई गलत नहीं है, मैंने भी ऐसे ही पास किया, तुम भी ऐसे ही पास करते हो, और 12 सालों से मैं तो इतने सारे इंजीनियर्स को देख रहा हूँ। ठीक है, आपकी भावनाएं बिल्कुल भली बात ही समझता हूँ मैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाती है समझना, अगर आप अमेरिका भी जाना चाहते हो तो भाई टेक्निकल कोर्स के लिए जाओगे, आपको आना चाहिए ना कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपका इंटरव्यू होगा। आपको पता है यूएस जाने के लिए मैं बहुत सारे बच्चों को कंसल्टिंग करता हूँ, मैं बहुत सारे बच्चों को IELTS की भी तैयारी कराता हूँ, आइस गेट IELTS की भी तैयारी कराता है बाय द वे, है ना, हम लोग आपको IELTS की भी तैयारी करा के देते हैं। ठीक है, सो अगर आप मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो अगर कॉन्सेप्ट तो चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको पता होगा एक SOP होता है, एक LOR होता है, ठीक है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देना पड़ता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देना पड़ता है, और आपका इंटरव्यू होता है। अब भाई इंटरव्यू में पूछेगा क्या? शाहरुख खान के कितने बच्चे हैं वो थोड़ी पूछेगा, वो तो यही पूछेगा ना कि आपका टेक्निकल नॉलेज कितना है। आपको पता है कि आइगन वैल्यू क्या होती है, आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं, इंटीग्रेशन क्या है? ये मेरे कमरे में AC चल रहा है, इसका आइगन वैल्यू बता सकते हो? अरे सर हमको ये तो नहीं पता है कि इसका आइगन वैल्यू क्या, हमें पता है वो लैम्डा क्या होता है, कैरेक्टर पढ़ा सुना है ना, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर फर्स्ट ईयर में आ जाता है, मैट्रिसेस बनाते हैं, डिटरमिनेंट बनाते हैं। माय पॉइंट इज वेरी सिंपल कि अगर मेरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो सर मेरे को सब जगह गड़बड़ है। ठीक है सर, अगर मैं प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब के लिए भी जाऊंगा तो भी मुझे गेट की तैयारी जरूरी है। आप कंपनी ले लीजिए L&T, आप कंपनी ले लीजिए मैकेंजी, आप कंपनी ले लीजिए बेन, जितनी भी टॉप नॉच कंपनी है आपको इंजीनियरिंग के लिए लेने आई है ना, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ठीक है, जितनी भी कंपनीज हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, आपको नौकरी चाहिए, बिल्कुल चाहिए, मिलेगी। कोई कहता है कि जॉब की कमी है, मैं कहता हूं जॉब की कोई कमी नहीं है भाई। मेरे हिसाब से ना 3 चीजों की कमी है हिंदुस्तान में। क्या 3 चीजों की कमी है? पहला, इंजीनियर के पास कॉन्सेप्ट नहीं है सर, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करो दादा। जॉब की कोई कमी नहीं है, बताऊंगा आपको, हजारों जॉब्स अवेलेबल है। आप जिस HR के बंदे से बात करोगे ना, डेटा साइंस में जॉब अवेलेबल है, मैकेनिकल वालों के लिए जॉब अवेलेबल है, सिविल के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज ढूंढ रही हैं आपको। ठीक है, बट द पॉइंट इज हमारे कॉन्सेप्ट फंडामेंटल क्लियर नहीं है सर, हम केवल वो रट्टा मार के पास हुए हैं सर, इसलिए गड़बड़ है।
दूसरी चीज जो इंजीनियर को डेवलप करनी है, विच इज नथिंग बट लॉजिकल एबिलिटी टू थिंक। हम लोग अगेन लॉजिक नहीं डेवलप करते हैं, और गेट इज एन एग्जाम विच टेस्ट यू ऑन लॉजिक। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। गेट की खास बात या खूबसूरती यह है कि वो कभी भी क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है, लेकिन लॉजिक रिपीट करता है भाई, फंडामेंटल रिपीट करता है वो। तो बार बार रिपीटेटिव आपको चीजें मिलेंगी, ठीक है। और तीसरी चीज जो आपके लिए इंजीनियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको डेवलप करनी चाहिए, दैट इज द स्किल ऑफ प्रेजेंटेबिलिटी। अगर लाइफ में आपको इंटरव्यू देना नहीं आता है, लोगों से बात करना नहीं आता है, तो पिताजी का बिजनेस भी करने जाओगे ना तो गड़बड़ कर जाओगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ चुकी है अभी। इंटरव्यू, ठीक है, जीडी, ग्रुप डिस्कशन, कपड़ा कैसे पहनूं, बात कैसे करूं। मैं बच्चों को रेकमेंड करता हूं, हमारे आइस गेट के बच्चों को इंटर्नशिप करो। सेकंड ईयर थर्ड ईयर की अभी जो समर ब्रेक आती है, विंटर ब्रेक आती है, इसमें इंटर्नशिप करो। बच्चा सवाल पूछता है, सर कैसे कैसे मिलेंगी इंटर्नशिप, तो मैं उन्हें बताता हूँ कि कहाँ का इंटर्नशिप मिल सकती है। मेरे पास एक पूरी पीपीटी है जिसमें बताता हूँ कि कहाँ का इंटर्नशिप मिल सकती है। मैं उन्हें कहता हूँ इधर जाके ईमेल लिखो। अब ईमेल लिखने में अपनी गड़बड़ है, अपन को तो ये नहीं पता होता कैपिटल लेटर कहाँ लगाते हैं, स्मॉल लेटर, कॉमा, फुल स्टॉप। अरे हम इंजीनियर्स को तो ये भी नहीं पता होता कि सर पैराग्राफ कैसे चेंज करते हैं। अपन कैसे पैराग्राफ चेंज करते हैं पता है, जब लंबा हो जाता है, अरे यार बहुत लंबा हो रहा है, चेंज करो, है ना। हमें रूल नहीं पता भैया, हमें रूल नहीं पता। मेरी बात समझ रहे हो? ये जो प्रेजेंटेबिलिटी का स्किल है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और हमारे इंजीनियरिंग के करिकुलम में वो आता ही नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और शायद इसी वजह से मैंने आइस गेट स्टार्ट किया। कोई मुझसे पूछता है कि सर व्हाट इज योर विजन टू स्टार्ट आइस गेट, I want to develop concept to students. I don't want to give rectification. I don't want to complete syllabus. मुझे कॉलेज की तरह सिलेबस कंप्लीट कराने में इंटरेस्ट नहीं है सर। मैं बच्चों को लॉजिकल थिंकर बनाना चाहता हूँ, और तीसरी चीज मैं बच्चों के अंदर प्रेजेंटेबिलिटी का स्किल देना चाहता हूँ। एंड आई एम टेलिंग यू बैंग ऑन कि बॉस, अगर आपने ये तीन चीजें स्किल्स डेवलप की, आप एमबीए करो, आप एमटेक करो, आप पीएसयू में जाओ, आप कुछ भी जाओ, शार्क टैंक में जाओ, लेकिन ये तीन चीजें बहुत 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 इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अगर ये तीन चीजें जिस बच्चे ने डेवलप कर ली, उसकी लाइफ सेट है। आई कैन गारंटी यू दैट। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि मेरे पास जो बच्चा आता है, या जो मैं कह रहा था कि गेट तो करना ही पड़ेगा सर, मुझे अगर जॉब में भी जाना है, ठीक है, मुझे गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब में जाना है, मुझे प्राइवेट सेक्टर के जॉब में जाना है, तो कॉन्सेप्ट तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। मास्टर्स करने जाना है, इंडिया में जाना है, अब्रॉड जाना है, भाई कॉन्सेप्ट तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। सर मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, तो भी आप लॉजिकल थिंकर तो होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। आपकी प्रेजेंटेबिलिटी की स्किल अच्छी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? सो दीज आर ऑल द थ्री थिंग्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू। मैं आपको इंटरव्यू, आपकी जो प्लेसमेंट होती है कॉलेज में, उन सब की भी तैयारी यहाँ आ गई। प्लेसमेंट की भी तैयारी यहाँ पर आ जाती है। जब आप गेट की तैयारी करते हो, तो आप प्लेसमेंट के लिए भी ऑटोमेटिकली तैयार हो जाते हो। और अगर आप गेट के साथ हमारे साथ एक कॉम्बो ले लेते हो कि सर मैं आईएलटीएस भी रखता हूँ अपने साथ में, ठीक है, सो आईएलटीएस भी अगर आप साथ में रखते हो, तो आपकी अब्रॉड स्टडीज की भी सारी झंझट खत्म। We will take care of your consulting, we will take care of your visa process and कैसे आपको जाना है, कब एग्जाम लिखना है, everything. But the point is you should develop these three skills. बात समझ में आ रहा है? जब तक ये तीन skills develop नहीं करोगे भैया, तब तक गड़बड़ होती चली जाएगी। This is very very important. समझ में आ रहा है what I am trying to say? ठीक है। Now coming to this PPT, मैं छोटा सा आपको डेटा दिखाना चाहता हूँ। मैं एक छोटा सा PPT दिखाना चाहता हूँ आपको। ये PPT चाहिए तो एंड में मुझसे मांग लेना। With this premise, let me just give you some glimpse. ठीक है, कुछ कुछ चीजें बताता हूँ आपको। ठीक है, गोल की जब बात करते हैं इंजीनियर्स की, ठीक है, तो इंजीनियर्स को बहुत सारी एडवाइसेस मिलती हैं। जैसे सब कहते हैं बेटा एमबीए करो, एमबीए करो, इंजीनियरिंग प्लस एमबीए एक डेडली कॉम्बिनेशन होता है। मैंने बोला अच्छा सर, ये भी एक ऑप्शन है इंजीनियर के पास। टीचर्स कहते हैं एमई एमटेक क्यों नहीं करते, आईआईटी में जाओ, पीएसयू में जाओ, बहुत अच्छा स्कोप है। मैंने बोला अच्छा सर। पापा कहते हैं मेरा बेटा तो सर आईएएस बनेगा। सर ये आईएएस वाईएएस कैसे बनते, जरा बताइए, लाल बत्ती की गाड़ी में कैसे घूमते हैं सर। मैंने बोला अच्छा भाई, ये भी एक करियर ऑप्शन है। माय फ्रेंड सेज यू शुड ट्राई फॉर फॉरेन स्टडीज। मेरे दोस्त बोलते हैं कि भाई तू तो इंडिया के लिए बना ही नहीं है, तू तो विदेश जा, विदेश, तेरी तो वर्थ वर्थ वहां पर है। मैंने बोला अच्छा भाई। अच्छा, सबसे बड़ी टॉप एडवाइस क्या मिलती है पता है इंजीनियर को? वो कहती है नौकरी तो ढूंढ ले। हाँ भैया, नौकरी नहीं तो छोकरी भी नहीं है कि नहीं भाई? सारे इंजीनियरिंग की इसलिए थी कि जॉब मिल जाए, ठीक है ना। और सब इन सब के बीच में मैं सोचता हूँ एज एन इंजीनियर, इस छोटा सा बच्चा, नन्ही सी जान, क्या क्या करेगा भाई? सर मैं एमबीए भी करूं, मैं एमटेक भी करूं, मैं कॉलेज के असाइनमेंट भी करूं, मैं आईएएस भी बनूं, मैं नौकरी, तो मैं क्या क्या करूं? सो ऑन अ फन नोट आई वाज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि व्हाट आर द एस्पेक्ट्स व्हिच एन इंजीनियर कैन लुक एट। प्लीज अंडरस्टैंड, जब आप करियर के बारे में गोल सेट करते हो अपना, तो ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंटली आप समझिएगा। देखो, आंख बंद करके गेट की तरफ या किसी की तरफ मत चले जाना। मैं ना एक इंटरनेशनल सर्टिफाइड करियर काउंसलर हूं। आई हैव बीन अ सर्टिफाइड करियर काउंसलर फॉर 8 years नाउ। 8 साल से मैं करियर की काउंसलिंग करता हूं बच्चों की। और अगर आपको भी कराना है अपना करियर काउंसलिंग, तो मुझसे कनेक्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेक श्योर दैट आप एक राइट डिसीजन ले रहे हैं। देखो, इंजीनियरिंग करना शायद आपका डिसीजन नहीं था, आपके मार्क्स का डिसीजन था।
क्योंकि 10th क्लास में मार्क्स अच्छा आया था तो माताजी पिताजी ने साइंस दिला दिया, साइंस ले लिया, मैथ्स अच्छा था तो मैथ्स मिल गया। ठीक है, कभी कभी तो ब्रांच भी हम सेलेक्ट नहीं करते। कितने लोगों के साथ ऐसा है, से यस इन द चैट बॉक्स कि सर उस समय पे हॉट ब्रांच मुझे मैकेनिकल मिल रहा था, ले लिया, सिविल मिल रहा था, ले लिया, मैंने डिसाइड नहीं किया, मार्क्स ने डिसाइड किया। तो वेदर आई लाइक इट और नॉट, आई हैव टेकन दैट इंजीनियरिंग फील्ड। समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि हिंदुस्तान में जो बच्चा इंटेलिजेंट है, गुड है, वो अपने आप इंजीनियरिंग या मेडिकल की तरफ चला जाता है। जो थोड़ा एवरेज है उसको कॉमर्स वॉमर्स मिल जाता है, जो थोड़ा कमजोर है उसको आर्ट्स, तो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। बट अब आप मेच्योर हो गए हो भाई, अब आपके पास वो एपेटाइट हो रही है, यू आर मेच्योर इनफ, प्लीज अंडरस्टैंड नाउ। सो हाउ यू शुड सेलेक्ट अ करियर, प्लीज अंडरस्टैंड। सो यू नो हम लोग क्या करते हैं, वी टेक अ साइकोमेट्रिक टेस्ट ऑफ अ स्टूडेंट। ठीक है, मैं नॉर्मली बच्चे का एक साइकोमेट्रिक टेस्ट लेता हूँ, जिसमें आपको सोसाइटी को कैसे इनपुट देते हो, सोसाइटी से कैसे आउटपुट लेते हो, उसके बारे में मैं आपको एक रिपोर्ट देता हूँ। ठीक है, इट्स अ टेस्ट व्हिच आई कंडक्ट एट अ साइकोमेट्रिक टेस्ट। उसमें आपका इंटरेस्ट एरिया, आपकी पर्सनैलिटी और आपका एप्टीट्यूड, तीनों चीजों का मिश्रण है। जब तक ये तीनों चीजों को नहीं समझोगे ना, तब तक आप अपने राइट करियर में नहीं जा पाओगे। क्या आप एक पीपल आदमी हो, क्या आप एक अलूफ आदमी हो, किस तरीके के इंसान हो आप, वो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। और उसके बेसिस पे करियर निकल के आते हैं, उसके बेसिस पे करियर चॉइस निकल के आती है। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो जब तक ये तीनों चीजें अलाइन नहीं होंगी, फॉर एग्जाम्पल मुझे इंटरेस्ट है क्रिकेट खेलने में, मैं बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन बनना चाहता हूँ, लेकिन भाई मैं सुबह 5 बजे उठ के प्रैक्टिस करने नहीं जा सकता, तो शायद मेरी पर्सनैलिटी उसको, एप्टीट्यूड उसको सूट नहीं कर रहा। इंटरेस्ट होना अलग बात है, और पर्सनैलिटी और एप्टीट्यूड उसको सूट करना चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। इज दिस पॉइंट क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप करियर की बात करते हैं। ठीक है, अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, मेरे पास आ जाओ, आई विल हेल्प यू, आई विल गिव यू ऑल द एडवाइस, एक जेन्युइन एडवाइस दूंगा कि कैसे आपको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, करियर ऑप्शंस मैंने ऑलरेडी बताया। सो दीज आर द typical career options which I can look forward for when I go for engineers. Understand this thing, दुनिया कितनी तेजी से चेंज हो रही है। These jobs did not exist when we were kid, not typically we, but I was a kid. जब मैं छोटा बच्चा था, लॉलीपॉप खाता था, तब ये सारी जॉब्स नहीं थी भाई। डेटा साइंटिस्ट, सोशल मीडिया मैनेजर, क्लाउड आर्किटेक्ट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, कंटेंट क्रिएटर, ड्रोन ऑपरेटर, ड्राइवरलेस कार इंजीनियर्स, एयरबीएनबी होस्ट। और हमारी हालत कैसी होती है पता है? समथिंग लाइक दिस। और आप तो क्या लगता है, बिटकॉइन इज द फ्यूचर, इज द डेटा साइंस फ्यूचर, इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्यूचर? नो, नो, इलेक्ट्रिक व्हीकल इज प्रेजेंट। यू नो व्हाट इज फ्यूचर? सर फिनटेक इज फ्यूचर। नो, फिनटेक इज प्रेजेंट, फिनटेक इज प्रेजेंट। यू नो व्हाट इज द फ्यूचर? यू डोंट नो। 5 साल के बाद क्या होगा आपको आज नहीं पता है। क्या 5 साल पहले आप में से कितने लोग हैं, आप सोच के देखो, बिटकॉइन के बारे में जानते थे? हाँ, आपको पता है मेटावर्स इज नॉट गोइंग टू बी फ्यूचर अनिकेत, इट इज प्रेजेंट। मेटावर्स इज ऑलरेडी देयर, इट इज प्रेजेंट दादा। 5 साल के बाद क्या होगा वो आप सोच भी नहीं सकते। बट जो आपको करना है आज, वो है स्किल डेवलप। प्लीज अंडरस्टैंड, समथिंग विच यू नीड टू डेवलप। आई विल गिव यू नो एड्यूटेक का नाम सुना होगा, एडटेक, जैसे बायजूस है, अनअकैडमी है, ये सब एडटेक कंपनीज है ना। आपने फिनटेक का नाम सुना होगा, भारत पे, अश्नील ग्रोवर, सबको पता है। ठीक है, भारत पे है ना। नाउ दीज आर फिनटेक। You know what is the next tech which is coming up? That is agri-tech, agriculture related technology. ऐप बन रही है, उसके ऊपर काम चल रहा है, उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत जबरदस्त काम चल रहा है। ठीक है, माय पॉइंट इज वेरी सिंपल, दुनिया इतनी तेजी से चेंज हो रही है, तो ये जो बच्ची की इमेज दिख रही है ना, आपकी हालत ऐसी नहीं होनी चाहिए। यू शुड नॉट फील कि व्हाट्स गोइंग ऑन, यार दुनिया में हो क्या रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ और ये क्या हो रहा है। इसीलिए मैं बच्चों को रिकमेंड करता हूँ, इंटर्नशिप्स ढूंढिए, इंटर्नशिप्स। और जिसके पास इंटर्नशिप नहीं है वो गड़बड़ कर रहा है भाई। ठीक है, वर्ल्ड में डेटा इतनी तेजी से चेंज हो रहा है, यू नो, इतनी तेजी से चेंज हो रहा है, यू कैन सी मेगाबाइट्स, किलोबाइट्स, है ना, फॉरेस्ट के अंदर एक्साबाइट्स के अंदर। ठीक है, दुनिया इतनी तेजी से चेंज हो रही है। ठीक है, वर्ल्ड इज चेंजिंग विद डेटा साइंस। आपको लगता है मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइट। आई कम बैक टू दिस थिंग, गेट की जब बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपने सबसे पहला फायदा मैंने आपको ऑलरेडी बताया, पीएसयूज। आप देख सकते हो सारे पीएसयूज, आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, पावर ग्रिड, गेल, बेल। इंडिया के अंदर ना 250 से ज्यादा पीएसयूज हैं, 250 प्लस पीएसयूज आर देयर, आउट ऑफ विच टॉप 43 पीएसयूज गेट का एग्जाम एक्सेप्ट करते हैं अपने इंटरव्यू कॉल के लिए। पहले 2009 से पहले ये लोग सब अपना एग्जाम लेते थे, 2009 के बाद ये लोग सब गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट करने लग गए। सैलरी देख लो यार, फटाफट आंखों में बसा लो सैलरी। just look at the salaries, just look at the salary. Highest किसका दिख रहा है आपको? What is the highest salary you can see? Can you look at Power Grid? 17.9 lakhs. HPCL का जो 11 लाख दिख रहा है ना सबसे ऊपर, वो 17 लाख हो चुका है, 17 लाख हो चुका है HPCL का। ये केवल बीटेक के बाद है, जस्ट इंजीनियरिंग के बाद आपको नौकरी मिल रही है भाई, है ना। मेट्रो में जॉब मिल रही है,
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जॉब मिल रही है। इनमें से काफी सारे गेट के थ्रू है, काफी सारे खुद का भी एग्जाम लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा, ठीक है ना। अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट करता है, सेपरेट एग्जाम लेता है। इसरो का सेपरेट एग्जाम होता है। ISRO सुना है ना, इंडियन स्पेस। आप इंजीनियर की तरह काम कर सकते हो उसमें। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, आप काम कर सकते हो यार उसमें। SSC जूनियर इंजीनियर का एग्जाम होता है, ठीक है। कोल इंडिया लिमिटेड का एग्जाम होता है। मजे की बात यह है, इन सभी एग्जामों की जो पेपर पैटर्न है वो एग्जैक्टली गेट जैसा है। अब BSNL का JTO का पहले एग्जाम होता था, ठीक है, अभी बंद हो गया, अभी गेट के थ्रू लेता है। DRDO का नाम सुना है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये सब जितने भी आप एग्जाम देख रहे हो स्टेट लेवल के, GPSC का नाम सुना होगा आपने, स्टेट लेवल के, नर्मदा कनाल का जितना भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जितने भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, ये स्टार्टिंग सैलरी है समवेयर अराउंड 15 to 18 लाख रुपीज। वो सब के सब गेट के अंदर कवर होते हैं। सर प्राइवेट कंपनी में जाना है यार, प्राइवेट कंपनी भी टेस्ट लेती है ना, रिटन टेस्ट है, टेक्निकल क्वेश्चंस। आप कॉलकॉम में जाओ, फिलिप्स में जाओ, आप पटनी कंप्यूटर्स में जाओ, आप विप्रो में जाओ, माइक्रोसॉफ्ट में जाओ, सैमसंग में जाओ, जिस भी हनीवेल में जाओ, LNT में जाओ, जिस भी कंपनी में जाओगे वो टेक्निकल इंटरव्यू, टेक्निकल क्वेश्चन तो पूछेगा। फंडामेंटल तो आना चाहिए। मोदी जी बोल रहे हैं कि नाउ अ टेस्ट एट PSU कैन गेट अ प्राइवेट सेक्टर, मतलब आने वाले टाइम में एक एग्जाम आ रहा IPAT, जिसके थ्रू आप प्राइवेट सेक्टर कंपनी में भी जा सकते हो, ठीक है। उसका एग्जाम भी पेपर पैटर्न सेम ही रहने वाला है, ठीक है। हायर एजुकेशन आपको पता होगा, मास्टर्स करने का एक दुनिया की लौती पढ़ाई है जो कि आपको पढ़ाई करने का पैसा और देगी। 12,400 रुपए हर महीना मिलेगा पढ़ने का स्टाइपेंड। क्या बात कर रहे हो सर, पैसा मिलेगा? हाँ। और IIT की फीस 50,000 रुपए साल की, 50,000 रुपीज पूरे साल की, खाना पीना साथ में, और 12,400 आपको हर महीने मिल जाएगा। और अगर आप PhD करने जाते हो, आपको पता होगा डायरेक्ट PhD के लिए भी जा सकते हो, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो, तो स्टाइपेंड इज 23,000। सर क्या मजाक कर रहे हो, इतना पैसा मिलेगा हमको? हाँ बिल्कुल मिलेगा, मतलब आपको अपना पढ़ाई खुद फंड कर लेना है। सर सबसे बड़ा फायदा इस ME MTech फ्रॉम, आपकी जिंदगी में कसक रह गई थी कि नहीं मुझे IIT में जाना है, मुझे फाइट मारनी है, ठीक है, मुझे भी टॉप लेवल का आदमी बनना है ना। चेतन भगत, नारायण मूर्ति, सुंदर पिचाई, पराग अग्रवाल, ट्विटर के जितने भी लोग आप देखो टॉप IIT से पास आउट हुए हैं। और अगर आपको भी उस लेवल पे पहुंचना है तो आप मास्टर्स कर सकते हो, या तो PhD के लिए जा सकते हो। गेट के बाद सीधा PhD होता है। पहले ऐसा होता था कि पहले मास्टर्स करो फिर PhD करो, डायरेक्टली भी जा सकते हो, ठीक है ना। IIMs में जाना है, फेलोशिप प्रोग्राम होता है, FPM प्रोग्राम, ऑपरेशनल मैनेजमेंट में। इट्स अ 5 years प्रोग्राम, बेसिकली 5 साल का ऑपरेशनल, इट्स सॉर्ट ऑफ अ PhD प्रोग्राम। उसमें आपको 22,000 रुपए मिलता है स्टाइपेंड, ठीक है। सर मुझे MBA करना है फ्रॉम अ कॉलेज कॉल्ड एज निटी इन मुंबई, स्पेशली मैकेनिकल वाले मेरे भाई लोग बहन लोग, ठीक है। ऑपरेशनल मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिकल वाले जाना चाहते हैं इसमें ऑपरेशनल मैनेजमेंट में, तो निटी। आपको पता है एवरेज पैकेज 23 लाख रुपए, 23 लाख। कैट के थ्रू भी लेता है, गेट के थ्रू भी लेता है, और GMAT के थ्रू भी लेता है। सर स्टडी अब्रॉड, सिंगापुर, जर्मनी, न्यूजीलैंड, ऑलरेडी जो बता चुका हूं, इन कंट्रीज में इंडिया का गेट स्कोर का वैल्यू मिलता है। ये PPT सब मिल जाएगा आपको, चिंता मत करो, ठीक है। आपको पता है IISc बैंगलोर जो इंडिया का सबसे अच्छा कॉलेज है, ठीक है, रिसर्च में नंबर 2 पे आता है वर्ल्ड में, MIT के बाद। MIT जानते हो ना, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बाद सेकंड नंबर पे IISc बैंगलोर, ठीक है। अगर मैं इसकी टोटल कॉलेज के एवरेज ले लूं तो 12 से 13 लाख है, बट अगर कोर ब्रांचेस लूं, कोर ब्रांचेस जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, ठीक है, कंप्यूटर्स का एवरेज पैकेज 28 लाख रुपए है, ओनली कंप्यूटर्स का। IISc का एवरेज पैकेज की बात करूं, हाईएस्ट पैकेज 47 लाख इंडियन सैलरी सैमसंग ने लिया है, 47 लाख इस साल IISc बैंगलोर। आप सोच सकते हो, मार्वलस, मार्वलस, सुपर्ब। मैकेनिकल का एवरेज पैकेज 21 लाख, 21 लाख। ये तो पूरे कॉलेज का, इसमें बायोटेक्नोलॉजी और दुनिया भर की ब्रांचेस भी आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोर ब्रांचेस का मैं सिलेबस ले लूं, टॉप 100 रैंक्स जाते हैं, गेट के टॉप 100 रैंक्स IISc में जा पाते हैं। सर उसके अलावा IITs हैं, 24 IITs हैं हमारे पास, 30 NITs हैं हमारे पास, ठीक है। अगर आप टॉप नॉच कॉलेज में जाना चाहते हो तो आप अच्छा कॉलेज सेलेक्ट करोगे, उसमें अच्छा पैकेज मिलेगा, ठीक है। कौन कौन सी कंपनीज आती हैं? सर मुझे अलग अलग सेक्टर में जाने की इच्छा है, मुझे तो सर फाइनेंस में जाना है, नो प्रॉब्लम, आप फाइनेंस की टेक्नोलॉजी पे काम कर सकते हो, आप ऑयल एंड एनर्जी में जा सकते हो, आप कोर सेक्टर जैसे जनरल इलेक्ट्रिक हो गया, एयरबस हो गया, है ना, तेजस इंस्ट्रूमेंटेशन, टेक्सास, ठीक है, रिलायंस में आप काम कर सकते हो। फ्रैक्टल एक एनालिटिक्स की कंपनी है, ठीक है, बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, BCG, नेल्सन, ठीक है, बहुत सारे, म्यू सिग्मा, याहू, KPMG, ओपेरा, BCG, मैकेंजीज, ठीक है, HSBC, ट्राइडेंट, ऐसी जबरदस्त कंपनीज आपको प्लेसमेंट के लिए आती हैं। शायद ये कंपनीज हमारे कॉलेज में नहीं आती, लेकिन IIT में आती हैं, तो अगर आप वहां पे पहुंच सकते हो तो उसके लिए फाइट मारिए, ठीक है। 3 तरह के प्रोग्राम्स आप हो सकते हैं, अभी आपके लिए थोड़ा प्रीमेच्योर है, लेकिन ME MTech प्रोग्राम होता है,
आपको पता है एक MS का प्रोग्राम होता है, इसको RA बोलते हैं, कई बच्चों को ये पता ही नहीं होता। मैं बहुत सारे बच्चों को बताता हूँ कि थोड़ा सा लो ग्रेड स्कोर हो जाएगा ना तो भी चलेगा, क्योंकि ये 2 से 3 साल लेता है, लेकिन आप इन्हीं बच्चों के साथ बैठते हो और आपको भी स्टाइपेंड मिलता है। मैंने ऑलरेडी बताया PhD के लिए अब मास्टर्स कंपलसरी नहीं है, आप रिसर्च ओरिएंटेड हो, आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना चाहते हो, 5 साल लगेंगे, 4 से 5 साल में आप डॉक्टर लगा लोगे, इंटरव्यू बहुत क्रिटिकल होगा और थोड़ा सा लो ग्रेड स्कोर होगा तो भी चलेगा, फोकस रहता है प्रोजेक्ट वर्क पे। एमई एमटेक इज प्योरली बेस्ड ऑन 2 years प्रोग्राम, हाई ग्रेड स्कोर इज इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट एडमिशन है और सीधा इंडस्ट्री पे फोकस है, सीधा आप इंडस्ट्री में जॉब के लिए रेडी होते हो उसके अंदर, ठीक है। गेट के पेपर के अंदर क्या क्या आता है, जस्ट हैव अ लुक एट दिस, देयर आर 65 मार्क्स क्वेश्चंस, ठीक है, 65 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर का पेपर है और 3 घंटा मिलता है। ये जो 65 क्वेश्चंस हैं वो डिवाइडेड है 30 क्वेश्चंस MCQ होते हैं, ठीक है, एंड यू हैव MSQ एंड यू हैव NET, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, जिसको हम बोलते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। सो दीज आर 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चंस 1 मार्क के होते हैं, 35 क्वेश्चन 2 मार्क के होते हैं, टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात, सर अगर मुझे गेट डेवलप करना है, मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में गेट लिखना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में गेट क्लियर करना है, तो मुझे क्या करना होगा, ठीक है। मेरे हिसाब से सबसे पहली चीज आपको अपने अंदर एक बिलीफ रखना होगा, ठीक है, अपने अंदर एक आग रखनी होगी कि सर मुझे कुछ करना है लाइफ में, मुझे भीड़ नहीं बनना सर, मुझे भीड़ से अलग हटके करना है, तो अंदर से एक आग, एक बिलीफ नहीं होगी ना तब तक कुछ नहीं होगा बॉस, ठीक है। सेकेंडली, खाली बोलना नहीं है, कॉन्सेप्ट डेवलप करने हैं, फंडामेंटल डेवलप करने हैं, ठीक है। मैंने अभी समझाया आपको, अगर आपका बेसिक्स कमजोर है, अगर मुझे आइगन वैल्यू का फंडामेंटल नहीं पता है, अगर मुझे नहीं पता है कि 3+4 आयोटा का मतलब क्या होता है, मैंने 3 एप्पल तो आपसे मांग सकता हूँ ना, 3 टेबल, 3 बॉयज, 4 आयोटा बॉयज कैसे मांगू आपसे, व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ इट इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड, वो आपको अगर समझ में नहीं आया है तो कॉन्सेप्ट नहीं है बॉस, कॉन्सेप्ट, कॉलेज की पढ़ाई कॉन्सेप्ट नहीं डेवलप कर रही है। अगर आप रियली में वर्ल्ड में जाना चाहते हो तो फंडामेंटल डेवलप करो। सेकेंडली, सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। हम लोग आपको बुक्स मटेरियल देंगे, ठीक है। अच्छा, कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर मैं सेल्फ स्टडी करूं या फिर मैं आइस गेट को ज्वाइन करूं, ठीक है, सर मैं दोनों में से क्या करूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आइस गेट का फीस नहीं भर सकता। देखो यार, एक चीज समझने की कोशिश करो, दिस इज नॉट वर्सेस, मेरे ख्याल से दिस इज प्लस। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं आपके लिए सेल्फ स्टडी कर सकता हूँ क्या? नहीं ना, आइस गेट आपके लिए सेल्फ स्टडी नहीं कर सकता। आइस गेट आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करके दे सकता है, आपके डाउट सॉल्व करवा सकता है, आपकी स्ट्रैटेजी बना के दे सकता है, हमारा मोटिवेशन दे सकता है कि नहीं। हम लोग रोज सोचते हैं पढ़ना है कुछ करना है, लेकिन वो टारगेट नहीं आता, तो एक मेंटोर या एक फैकल्टी आपको ये सब करके दे सकता है कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़, कब पढ़। मेरे पास क्या कोई तिलस्मी दुनिया का ज्ञान है क्या? नहीं, मैंने भी वही है जो मार्केट में अवेलेबल है। एक सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके लिए 6 किताबें, मैंने वो 6 किताबें पढ़ी हुई हैं, तो मैं आपको वो कॉन्सेप्ट 4 दिन में, 5 दिन में समझा दूंगा। खुद से पढ़ने जाओगे तो 6 महीने लगेंगे और उतना समय नहीं है हमारे पास। मेरी बात समझ के मैं क्या बोल रहा हूँ? सो आइस गेट इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग एक्सेप्शनल, बट वो आपका डाउट सॉल्व करेगा, आपकी स्ट्रैटेजी बनाएगा, आपके कॉन्सेप्ट जल्दी से समझा देगा और आपको मोटिवेट करेगा समय समय पे। एक टारगेट रहता है हमारे पास। यार दुनिया भर के आपकी लाइब्रेरी में बुक्स हैं, वीडियोज हैं, कितना सुनते हैं। और हाँ, मैंने कॉन्सेप्ट डेवलप किए और मैंने बोला भाई इस पे 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, वो तो तेरे को ही करने हैं दादा, वो सेल्फ स्टडी तो आप ही को करनी है, मैं आपकी सेल्फ स्टडी नहीं कर सकता। समझ रहे हैं मेरी बात को? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट देयर हैज टू बी अ कॉम्बो ऑफ टू। कोई बच्चा मुझसे जब पूछता है कि सर मुझे सेल्फ स्टडी करना चाहिए या मेरे को किसी मेंटर को सिलेक्ट करना चाहिए, मेरा सिंपल जवाब है भाई तू अकेला, देखो ताली 2 हाथ से बजती है, मैं अकेला अधूरा हूँ, ये भी अकेला अधूरा, जब तक हम दोनों हाथ नहीं मिलाएंगे तब तक हम नहीं जीत पाएंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ठीक है। प्रायोरिटाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट, कौन सा पढ़ूं, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मैं इसमें वीक हूं, उसमें कैसे इंप्रूव करूं, एंड प्रैक्टिसिंग मॉक्स, कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए। हम लोग आपको 8 फुल लेंथ मॉक देते हैं अक्रॉस इंडिया के, जो ऑल इंडिया मॉक्स कहते हैं उन्हें ऑल इंडिया मॉक्स कहते हैं, प्लस 12 FLT देते हैं फुल लेंथ टेस्ट, टोटल मिला के 20+। और जो बच्चा 20 खत्म कर देगा मैं उसको 20 और दे दूंगा, ठीक है ना। इतने सालों से मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, इतने पेपर बनाना बड़ी बात नहीं है, आपका सॉल्विंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आपका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए किसी भी चीज की पढ़ाई का? सबसे पहले आपने कॉन्सेप्ट डेवलप किया, उसके लिए आप क्लास अटेंड करेंगे, ठीक है, आपने क्लास किया, आपने कॉन्सेप्ट डेवलप किया। सेकेंड, आप एक नोट्स बनाएंगे अच्छा सा, ठीक है। नोट्स बनाने के बाद आप इसके टॉपिक टेस्ट लिखेंगे। हम आपको एक पोर्टल देंगे aspiration.ai, जो हमारा खुद का पोर्टल है जिसमें टॉपिक टेस्ट मिलेंगे आप, ठीक है, ऑनलाइन है वो सब कुछ, ठीक है। उसके बाद टॉपिक टेस्ट देने के बाद आप सब्जेक्ट टेस्ट लिखेंगे इसका, ठीक है। ऑलमोस्ट हर टॉपिक पे आपको 4 से 5 टेस्ट मिलेंगे। टॉपिक टेस्ट दे दिया, देन यू गो टू द सब्जेक्ट टेस्ट। जैसे सब्जेक्ट टेस्ट करते हो आप जाओगे प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस, पिछले 20 साल के गेट क्वेश्चंस वी विल बी गिविंग यू, ठीक है। हाँ, ये सब हम देंगे आपको।
20 ईयर्स के प्रीवियस ईयर के गेट क्वेश्चन सॉल्व किए, उसके बाद हम आपको देंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन अराउंड 100 प्लस आपको हर सब्जेक्ट में मिलेंगे। जब तक ये पूरा साइकिल आपने खत्म नहीं किया है तब तक आप नहीं बोल सकते कि मेरा ये सब्जेक्ट तैयार है। When you complete this, you go to the next subject, you go to the next subject and so on. आपको पता है गेट का जो सिलेबस है वो अप्रोक्सीमेटली 10 सब्जेक्ट्स को कवर करता है किसी भी ब्रांच में, और हर सब्जेक्ट को कवर करने के लिए आपको 100 प्लस आवर्स लगेगा। 100 प्लस आवर्स का मतलब है 1000 आवर्स चाहिए आपको। अब आप मैथ्स लगा लो आपके पास कितने दिन बचे हैं और आपको रोज कितनी पढ़ाई करनी है। बीच में होली भी आएगी, दिवाली भी आएगी, कॉलेज के एग्जाम भी आएगा, आप बीमार भी पड़ोगे, सब कुछ होगा, सोच के देख लेना। 1000 घंटे की प्रिपरेशन आपको चाहिए मिनिमम से मिनिमम, अगर आप अच्छे रैंक्स लाना चाहते हो तो। अब आप सोच लीजिए आपके पास जितने दिन बचे हैं उससे मैथ्स लगा के देख लेना आपको क्या करना है, ठीक है। सो दिस ऑल फ्रॉम माय साइड, ठीक है। इंटरव्यूज ये सब चीजें हमको बता। अच्छा ये देख लो कितना मार्क्स लाने से क्या मिल जाता है, जस्ट हैव अ लुक एट दिस। तो इफ यू लुक एट दिस क्विकली, गेट को क्वालिफाई करना है सर, वो 12400 लाना है, तो मिनिमम 25 से 30 नंबर लाना है किसी ब्रांच में। जैसे जैसे मार्क्स बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे अपॉर्चुनिटी का दायरा बढ़ता जाएगा। अगर मुझे सर पीएसयू में जाना है, आईआईटी में जाना है, तो समवेयर अराउंड 70 to 80 स्कोर चाहिए आपको, ठीक है। 70 प्लस का स्कोर चाहिए। अगर आप टॉप नॉच आईआईएससी की बात करें तो 85-90 के आसपास सही होता है। आजकल इतना कंपटीशन बढ़ चुका है। ये पीपीटी में आपको दे दूंगा। तो दीज आर द मार्क्स वर्सेस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। आइस गेट को आप सभी जानते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ यू नो दीज आर द रिजल्ट। इन बच्चों से आपकी बात कराऊंगा, ऑल इंडिया रैंक 4, ऑल इंडिया रैंक 3, इतने सारे बच्चे अलग अलग डोमेन से हमारे हैं, जो कि अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं, अलग अलग कॉलेजेस से हैं, ठीक है। तो ये पीपीटी आप ले लीजिएगा, यू कैन हैव अ लुक एट दिस, ठीक है। दीज आर सम ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव डन ग्रेट, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनीज में है, एको, इंटेल, कॉलकॉम, डायरेक्टी, आईबीएम, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, एप्पल। So these are some of the Amazon, ठीक है, these are some of the companies which have recruited them, ठीक है। you can talk to them, आपको इनसे बात करनी है। तेजस नेटवर्क्स, नेटवेल, बहुत सारे जबरदस्त कंपनी में काम करते हैं। इधर फैकल्टी पैनल्स, यू कैन हैव अ लुक एट दिस कि कहाँ से फैकल्टी आती है। मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं खुद पढ़ाऊंगा। एनटीपीसी में काम करते हैं सर नागार्जुन सर, संजीव रेड्डी सर इज फ्रॉम ओरेकल, ठीक है। राहुल अग्रवाल सर, ही इज एन आईएएस ऑफिसर, ठीक है। हरमीत सर, ही इज पीएचडी फ्रॉम आईआईएससी बैंगलोर। तो इस लेवल की फैकल्टीज, सुशील सर इज फ्रॉम आईआईटी रुड़की, ठीक है। इस लेवल के फैकल्टीज आपको पढ़ा रहे हैं, इस लेवल की तैयारी आपको हो रहा है। तो इट्स रियली रियली ग्रेट विच यू कैन लुक एट, ठीक है। ओके, बहुत लंबा नहीं खींचते, लेट्स कम टू द लास्ट पार्ट। जैसे मैंने कहा था 30 मिनट्स, और आई थिंक वी आर इन टाइम, 35 मिनट्स हुए हैं अभी। तो मैंने आपसे बिल्कुल प्रॉमिस किया था, उसको मैंने निभाया है। टिप्स टू क्रैक गेट, स्टार्ट अर्ली, डोंट वेट। सबसे बड़ी दिक्कत इंजीनियर की होती है, सोचता बहुत है। इवन इफ यू कंप्लीट योर फर्स्ट ईयर, आपको पता है 3rd ईयर में आप गेट लिख सकते हो, और गेट का स्कोर 3 साल तक वैलिड होता है, 3 ईयर तक। फॉर मास्टर्स इट इज वैलिड फॉर 3 ईयर्स, 3 साल तक वैलिड रहेगा, ठीक है। तो 3rd ईयर में भी गेट लिखो, 4th ईयर में भी गेट लिखो, दोनों में से जो बेस्ट ऑफ द 2 है उसके बेसिस पे अप्लाई करो मास्टर्स के लिए, ठीक है। सो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। इवन इफ यू हैव कंप्लीटेड योर फर्स्ट ईयर, यू शुड स्टार्ट। देखो सिंपल सी बात है, आपका गोल ये रहा, आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो आपके पास इतना समय, आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो इतना समय। दिस इज सिनेरियो 1, दिस इज सिनेरियो 2। डेफिनेटली सिनेरियो 2 में आप रिवीजन कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, आड़े क्वेश्चन टेढ़े क्वेश्चन सब कुछ कर सकते हो, कॉलेज भी मैनेज कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना आप ही का बेनिफिट है। ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि जो स्टूडेंट क्रैक करते हैं अच्छे कॉलेज के एग्जाम, वो होते हैं जो जल्दी स्टार्ट करते हैं। सो राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन टिपिकली वुड बी 2nd ईयर राउंड। जैसे आप 3rd सेमेस्टर में आ चुके हो, अटैक कर दो। आप ऑलरेडी 4th सेमेस्टर में हो, भैया बहुत लेट हो, मेरे हिसाब से बहुत लेट हो। हिंदुस्तान के इतने सारे बच्चे ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं। फोकस ऑन बेसिक मैथ्स, नेक्स्ट टिप दे रहा हूं आपको, फोकस ऑन बेसिक मैथ्स, फंडामेंटल आपको स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। शेखर बात करता हूं बेटा, सवारी बात होगी, ये पहले सुन ले 5 मिनट और, ठीक है। बेसिक मैथ्स पे फोकस करिए। आप देखिए कोई भी सब्जेक्ट उठा लो अपने ब्रांच का, मैथ्स आती है, फॉर्मूलेज आते हैं। इवन गेट में ऑलमोस्ट 30 to 40% सिलेबस जो है ना वो फॉर्मूला बेस्ड है। अब प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ, सर मैं आपने कहा 10 सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में अप्रोक्सीमेटली 10 चैप्टर्स, और हर चैप्टर में अप्रोक्सीमेटली 5 कॉन्सेप्ट, ठीक है। मोटा मोटा मिला के 10 into 10 into 5 विच इज अप्रोक्सीमेटली 500 के आसपास कॉन्सेप्ट हैं, है ना। और 500 कॉन्सेप्ट 500 फॉर्मूलेज में तब्दील हो जाते हैं। अब हमारी प्रॉब्लम है, हमें वो याद नहीं रहता, है ना। हम भूल जाते हैं कि लैम्डा स्क्वायर इंटू 3/σ था, या फिर वो डिवाइड बाय 3 था। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। सम डी की वैल्यू अगर गिवन है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ऐसा बहुत बार होता है ना सर, यहाँ पर हाफ लगाना भूल गया था, ठीक है, ये स्क्वायर नहीं किया मैंने, क्यूब कर दिया। ऐसा बहुत बार कॉलेज एग्जाम में भी होता है। तो बेसिक मैथ्स पे फोकस कीजिए। और जो लोग D2D आते हैं उनके लिए हम स्पेशल क्लासेस करेंगे मैथ्स की, क्योंकि आपका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन गड़बड़ होता है।
ठीक है। सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट कि फोकस करिए। ये तो हमें महारत हासिल होती है लास्ट 10 इयर्स के पेपर सॉल्व करने की, ठीक है, ये तो हमें पता ही होता है, ठीक है। पिछले 10 साल के पेपर सॉल्व, देखो गेट में पेपर में क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, लेकिन फंडामेंटल रिपीट होता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फंडा पकड़े उसके अंदर, ठीक है। और ये पेपर्स हम देंगे आपको। एंड गो टू द बेस्ट मेंटर्स एंड डोंट कॉम्प्रोमाइज। भाई मैं बता देता हूँ आपको, जिंदगी में ना बार बार ये मौका नहीं आता है। ये कुदरत आपको आखिरी मौका दे रही है जब अपने आप को प्रूव कर सकते हो, व्हेन यू कैन से दैट यू कैन मेक योर पेरेंट्स प्राउड, ठीक है ना। आपके माताजी पिताजी को अगर आपको प्राउड फील कराना है तो बस ये आखिरी मौका, उसके बाद कॉर्पोरेट में चले जाओगे। तो आप वो जो टैग नेम लेके घूमते हो ना आईआईटी का, ठीक है, वो बार बार नहीं मिलता है बॉस, ठीक है। तो आपके पापा को मम्मा को आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपको केवल एक ही चीज चाहिए कि मेरा बच्चा अच्छी जगह पे पहुंच जाए। एंड इफ यू कैन डू दैट, दिस इज द राइट रीपेमेंट ऑफ देयर सर्विसेज दे हैव गिवन यू। आज तक जो भी उन्होंने किया आपके लिए, अगर आप उनको पे बैक करना चाहते हो तो एक अच्छे लेवल की पढ़ाई कर लो, एक अच्छे लेवल पे लड़ लो, यू विल डेफिनेटली विन द बैटल, ठीक है। सो डोंट कॉम्प्रोमाइज, तकलीफ पा लेना लेकिन एक अच्छी जगह पहुंचना। मैं ये नहीं कहता आप आइस गेट को ज्वाइन करो, जहां ज्वाइन करना है करो, बट मेक श्योर दैट यू गो टू द बेस्ट ऑफ द मेंटर्स एंड डोंट कॉम्प्रोमाइज। And I give you 3 mantras of success according to me, which are nothing but practice, practice and only practice. मेरे हिसाब से कोई 3 मंत्रा नहीं है, रोज निरंतर आप प्रैक्टिस करते हो। विराट कोहली अगर 8 घंटे का मैच खेलता है तो शायद 800 घंटे का प्रैक्टिस भी लगाता है। तो 800 घंटे का प्रैक्टिस तो हम नहीं देखते हैं, लेकिन वो 8 घंटे का मैच हम जरूर देखते हैं। सो मेक श्योर दैट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू टेक अप ऑल द फंडामेंटल्स। रोज प्रैक्टिस करो, निरंतर मेहनत करो, तब जाके आप बहुत अच्छे से चीजों को कर पाओगे। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है। So with this words, yeah, this is these are batches which I can give you. Okay, so these are the batches and these are the numbers which are mentioned on your screen. You can take down. अगर आपको मुझसे बात करनी है, ये PPT चाहिए, you can connect to these numbers. They will give you the PPTs. In case you want to connect to me, that's my name, Rohan sir. ठीक है, and I'll give you my phone number also particularly. ठीक है, ये वाले numbers भी आप note कर सकते हो, ठीक है, you can take down these numbers. ठीक है। So yeah, so that's the contact numbers of the centers, and if you want this PPT, just put them a request. I'm sharing my number also in case you want. So that's my name, Rohan. That's my number, 9924927097. I hope this session was good enough, and my email ID is rohan@icegateinstitute.com. ठीक है, @icegateinstitute.com. You can take up this. That's very simple, rohan@icegateinstitute.com. ठीक है। So क्या you can request, जिसको भी PPT चाहिए इस नंबर पे रिक्वेस्ट कर दीजिएगा, सेंड अ व्हाट्सअप, ठीक है। सर और मैडम विल शेयर यू द PPT, और अगर आपको यहाँ से नहीं मिलता है तो मेरे को भेज दीजिएगा, I will share the PPT with you. That's my number. You can save my number also. That's my personal number. आप मुझे व्हाट्सअप करें, जो भी व्हाट्सअप करेगा मैं उसे PPT सेंड कर दूंगा। अगर आपको अपने करियर के बारे में भी कोई बात करनी है, you are most welcome. I will love to help you in whatever best way I can. ठीक है। Before I take up your questions, can I have a quick feedback, guys? कैसा लगा आपको सेशन? अच्छा लगा, बुरा लगा? Was it a waste of time? Please quickly, can I have a quick feedback? Everyone out here, everyone out here, everyone out here. ठीक है, we are located, you can go to the website. मैसाना में तो नहीं है, ठीक है, we are available in Ahmedabad. You can come down. Quick feedback, guys. It will help me to understand. Okay, thank you, Ujjwal. Okay, Shekhar, very motivational. Okay, thank you everyone. Okay, in the guys, by the way, Prashant, it will be starting on 26th. ठीक है, 26th को विद्यानगर में भी will be starting. फी स्ट्रक्चर के लिए आप कांटेक्ट कीजिए अपने सेंटर से, ठीक है। भार्गव, प्लीज कांटेक्ट द सेंटर्स, दे विल हेल्प यू विद द फी स्ट्रक्चर, बुक्स, बिकॉज अलग अलग पैकेजेस होते हैं, ठीक है। आपको किस में जाना है, ठीक है, यू कैन ऑलवेज गेट इन टच, ठीक है। बैच क्या होंगे, कब से स्टार्ट होंगे, फिजिकल होगा, ऑनलाइन होगा, IELTS करना है, ऑनलाइन करना है, जो भी आपको डिस्कस करना है आप सेंटर्स पे कांटेक्ट करिए। आइसगेट की वेबसाइट है, यहाँ पर मेंशन की हुई है, ठीक है। यू कैन गो टू द वेबसाइट, यू कैन फाइंड आउट द लिंक्स, ठीक है, आप आराम से उसको देख सकते हो। स्कॉलरशिप्स डेफिनेटली रेडमी, आपका नाम बता दीजिए, इफ यू वांट सम हेल्प ऑन दैट लाइन वी कैन गिव। इंटर्नशिप के ऊपर हम सेशन करने वाले हैं, कुमार तुषार, वी आर गोना डू अ सेशन ऑन इंटर्नशिप स्पेसिफिकली नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो आप कांटेक्ट में रहिए, ठीक है, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू। पूर्वी, इट्स नॉट अबाउट टू लेट, ठीक है। अगर आप अभी तक नहीं जागे हो तो मेरा सजेशन है, एक बार देखो, सबसे पहली चीज मैं कहूंगा कि एक काउंसलिंग जरूर करवाओ यार।
फ्री में काउंसलिंग करके दे रहे हैं टीममेट्स आपको, प्लीज काउंसलिंग कराओ, ठीक है। हाँ, साइकोमेट्रिक टेस्ट वगैरह देना है तो वो पेड होता है क्योंकि वो थर्ड एजेंसी से होता है, लेकिन आप एक बेसिक काउंसलिंग कराना चाहते हो, काउंसलिंग जरूर कराओ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। जब आप डिटेल में समझ लेते हो ना, फिर आप जाके चीजों को करते हो, ठीक है। या शेखर, यू कैन प्लीज पुट इट इन द चैट, व्हाटएवर यू वांट टू put it in the chat box, ठीक है। स्कॉलरशिप्स के लिए राहुल, आई थिंक यू कैन गेट इन टच विद मी, और मैडम और सर जो भी नंबर दिए हैं उनसे बात करो, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू ऑन व्हाटएवर बेस्ट वी कैन, ठीक है राहुल, ठीक है। नंबर आपने नोट कर लिया होगा। शेखर, आप अपना सवाल पूछिए, ठीक है। बीटेक की जगह बी गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं तो कुछ फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता, नो 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 प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। लक्ष्मण, आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू रोहित, ओके। या शेखर, प्लीज पुट अप योर क्वेश्चन। तुषार भोसले, ओके। शेखर इज आस्किंग सर, गेट का स्कोर से कोर कंपनीज भी हायरिंग करती है? नो शेखर, कोर कंपनीज जो है वो अपना खुद का एग्जाम लेती है, लेकिन उसमें सिलेबस गेट का आता है ना। कोर कंपनीज जो अपना खुद का एग्जाम लेती है उसमें सिलेबस गेट का आता है, तो गेट से डायरेक्टली काउंसलिंग नहीं करते, ठीक है। काउंसलिंग ऑनलाइन भी कर सकते हो आयुष, फिजिकल भी आ सकते हो। हमारे सेंटर्स हैं जहां जहां आइस गेट के पूरे इंडिया में 13 सेंटर्स हैं। यू कैन गो टू द वेबसाइट एंड लुक एट, जहां जहां हमारे सेंटर्स फिजिकली है वहां पे आप फिजिकली आ सकते हो, और ऑनलाइन करना चाहते हो तो ऑनलाइन भी कर सकते हो। सर व्हाट इज टाइम, यू कैन मीट, यू कैन पुट, अगर मुझसे बात करनी है तो मुझे व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट भेज दो, मैं टाइम दे दूंगा आपको, मेरे से भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। सर गेट के मार्क्स देख के नहीं करती है हायर? नहीं करती है बेटा शेखर, वो आपको एक एडवांटेज देगी इंटरव्यू में, लेकिन इंटरव्यू का कॉल नहीं आएगा, ठीक है। मीत, हार्दिक लास्ट ईयर में गेट क्लियर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है हार्दिक, इफ यू आर इन द 6th सेमेस्टर डोंट वरी अबाउट दैट गाइस, 1 ईयर इज आल्सो गुड टाइम, बट इतना मेरा कहना है कि आपको भागना पड़ेगा, यू कैन नॉट वेस्ट अ सिंगल डे बॉस, ठीक है। तो कल से भी हमारा एक एप्टीट्यूड का बैच स्टार्ट हो रहा है, मैं ही पढ़ाने वाला हूं, तो अगर आपको आना है तो 5 o'clock अहमदाबाद में मैं बात कर रहा हूँ, यू कैन अटेंड दैट क्लास आल्सो इन अहमदाबाद, और 26 से हमारे टेक्निकल बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में नागपुर में सेंटर है, पुणे में सेंटर है, शेख रशीद। सर व्हाट इज द डिसेंट स्कोर टू गेट पीएसयू गेटिंग एमटेक? किसी भी कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में आना है तो 80 का टारगेट रखो, 80 इज अ गुड टारगेट। कॉलेज और गेट की, अब है इसके ऊपर हम सेशन करते हैं कि कॉलेज की पढ़ाई और गेट की पढ़ाई को कैसे मैनेज करें, हम एक सेपरेट सेशन करेंगे इसके ऊपर। विष्णु, अगर आप बिलो 6 CGPI हो तो प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल प्रॉब्लम होगी, 6 होना चाहिए, ONGC IOCL आपको रिजेक्ट कर देंगे, बिल्कुल 6 तो होना चाहिए। बैच इज ऑफलाइन, पूर्वी इन अहमदाबाद द बैच इज ऑफलाइन, यस एब्सोल्युटली। इंदौर में अभी सेंटर नहीं है आयुष, ठीक है। अगर आप इंदौर से हैं तो आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। शेखर, ओके पूर्वी, ठीक है। व्हाट इज द बेस्ट स्कोर फॉर IIT गेट? प्रिंस, आई थिंक आई हैव आंसर्ड, ठीक है, अराउंड 80 के ऊपर लेके आइए। यस, वडोदरा में ऑफलाइन वी आर स्टार्टिंग, हार्दिक वेरी सून विल बी स्टार्टिंग, ठीक है, प्रोबेबली दिस वीक और नेक्स्ट वीक यू कैन कांटेक्ट द सेंटर, दे विल लेट यू नो द डेट। अलग अलग शहरों में अलग अलग टाइम पे स्टार्ट हो रहा है लुकिंग एट द कोविड सिचुएशन, बट यू कैन कांटेक्ट द सेंटर्स। What is the score required? Lakshman, I think I have answered this. Ravindra, गांधीनगर में नहीं है, it's only in Ahmedabad, ठीक है। Yeah, नागपुर सेंटर से you can contact Rashid, no problem. वही ऑफलाइन में होती है प्रशांत, it's going to be the same. भार्गव, the batches keep on starting, तो आप एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा हमारे टीम मेंबर से, they will help you, ठीक है। आई होप आपने नाम नंबर नोट कर लिया होगा, ठीक है। There's no center in Hyderabad as of now. You can again see the numbers in case you have not noted. Please, you can take this. Sir, minimum score for NITI. Suman, the minimum score for NITI would be somewhere around 65 to 70. ठीक है, 65 to 70. अबे आई थिंक जितना भी आपको ऑपरेशनल चीजें हैं कि सर यहाँ पर भावनगर में सेंटर है कि नहीं, प्लीज यार वेबसाइट देख लो, ठीक है, और प्लीज हमसे कांटेक्ट कर लो, ठीक है। ये नंबर्स पे कांटेक्ट कर लो, वो सारी बातें आपको पता लग जाएंगी, कौन सी बुक्स मिलती हैं, क्या मिलती है, ऑल थिंग्स यू कैन गेट, ठीक है। क्लियर है गाइस? ठीक है, ऑनलाइन भी होता है रविंद्र, ऑनलाइन कोचिंग भी होता है, टाइमिंग वगैरह अब है, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, एक बार आप जो नंबर्स लेके उनसे कांटेक्ट करिए, वही आपको क्लियर कर देंगे। प्रशांत ठीक है, भार्गव क्लियर है, आई होप आई हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ योर क्वेश्चंस। चलो गाइस, ठीक है, तो अगर किसी के और भी सवाल रह जाते हैं, ठीक है, मीत, अगर कोई भी इस तरह के सवाल रह जाते हैं, ठीक है। यस, केमिकल इंजीनियरिंग का भी पुष्पराज अहमदाबाद में हम लोग कराते हैं, सो केमिकल इंजीनियरिंग का सेपरेट बैच होता है, सो इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है। सो अगर आपके कोई भी सवाल रह गए हैं या कुछ और भी आपको पूछना है, मैंने अपना नंबर भी दिया है, यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद अस और एनी ऑफ द टीम मेंबर्स, दे विल लव टू हेल्प यू, ठीक है। आई होप ये सेशन आपको मजा आया होगा, आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा, एंड सी यू इन क्लासेस देन टुमारो, ठीक है। चलिए, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अपना बहुत ध्यान रखिए, बहुत मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए और अच्छा रिजल्ट लेके आओ, ठीक है। चलिए, बाय, गुड नाइट, बाय एवरीवन, बाय 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 प्रिंस, बाय बेटा, बाय 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 बाय।